एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई नो तुम सब 9th क्लास में चले गए हो और शायद अभी ये हार्ड लगना शुरू हो गया हो या फिर तुम्हारे लिए इजी हो जो सो कॉल्ड टॉपर्स हैं। बट इफ़ यू आर फीलिंग दिस इजी, आई मेक इट easiest for you, and if you're feeling it hard, I'll make it easy for you to understand the chapters and everything easily. Okay, so don't panic or get nervous when you're going to revise or attempt the question papers exams. Okay, so now the first lesson for the 9th class, we are going to start from the social science geography part, chapter 1. In your NCRT book, I can tell you the page number, which is 1. Ultimately it's chapter 1, so page number will be 1. Okay, and from the name only we are able to know that what we are going to learn this in this chapter, which is India's size and location. So there are basically four things that we are going to cover in this chapter, which is location of India, size of India, strategic location of India, and neighbors of India. Okay, now moving on the next slide, which is studying the first topic of this chapter, which is size of India. अब साइज़ ऑफ इंडिया में हम बहुत सारे पॉइंट्स, इसमें बहुत सारे नंबर्स है याद करने के लिए, सो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो सकता है और ये एग्ज़ाम में आएगा. ओके, आई गिव यू अ क्वेश्चन ऑन दिस, यू कैन प्रैक्टिस इट. ओके, आई टेल दिस क्वेश्चन लेटर. फर्स्ट लेट्स अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस टॉपिक अबाउट इज. दिस इज दिस अबाउट द साइज़ ऑफ इंडिया. इंडिया की साइज़ एक्चुअली है क्या? सबसे पहले हमें जानना है कि इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में है. सो लेट मी रिकॉल इट फॉर यू. व्हाट इज़ हेमिस्फेयर? Okay, this is Earth. There is an equator line, an imaginary line that is called equator, which divides the Earth into two half parts like this. The upper and the lower part. First, upper, which is north, and down, which is the south. So these two divisions are called hemispheres. So the hemisphere in the north side is called northern hemisphere, and the hemisphere in the southern side is called southern hemisphere. Okay. नाउ कमिंग ऑन द सेकेंड. ओके, सो जो भी आपका अर्थ है, ठीक है, उस पर हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है, इसलिए इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. सो हेमिस्फेयर का टॉपिक क्लियर है. कमिंग ऑन द सेकेंड पॉइंट, विच इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया. अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है इंडिया का? Latitudinal and longitudinal. Let me tell you what is latitude and longitude before studying these two points. This is the Earth. It's not circle, I know. This is Earth. Here are some horizontal line and vertical lines. These vertical lines are called longitudes and these horizontal lines are called latitudes. लेटे हुए लाइन को लैटिट्यूड कहते हैं और लंबे लंबे खींचे हुए सीधे सीधे लाइनों को लॉन्गिट्यूड कहते हैं. ओके, अब जानना है, ये याद करने की चीज़ है. लैटिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है इंडिया का? 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 ईस्ट. सॉरी, 84 डिग्री ईस्ट एंड 37 डिग्री ईस्ट, यहाँ पर ईस्ट करना है. ओके, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया. अभी हमने लैटिट्यूड के बारे में जाना था. लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 ईस्ट एंड 37 डिग्री 6 ईस्ट. Now the longitudinal extent, that means in this, is about 68 degree 7 north and 97 degree 25 east. Now coming on the next thing, suppose this is your India. Okay, I don't know how to draw here like this. Suppose this is your India in the northern hemisphere. Now at the 23 degree 30 north, here Tropic of Cancer passes through India, dividing it into two equal half parts. Okay, what's actually happening here, that suppose this is the Earth, here's your India above the northern hemisphere, from which
Tropic of Cancer at 23°30 north. It is passing through our India, dividing into two equal parts. Not two equal parts, dividing into two parts only. Almost two parts. Almost two equal parts. Okay. If you see the map, you will find that suppose this is your India. The Tropic of Cancer is passing through it. ओके नाउ नेक्स्ट साउथ. ओके अब इंडिया है, सपोज दिस इज़ इंडिया. इंडिया के पास यहाँ पर दो आइलैंड्स हैं. ये आइलैंड्स भी इंडिया के ही हैं. एक है अंडमान और एक है लक्षद्वीप. अंडमान आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है. एक साउथ वेस्ट में है और एक साउथ ईस्ट में है. Now moving on the next slide, which is the location of India. अब हम दूसरा टॉपिक समझने वाले हैं जो है इंडिया के लोकेशन के बारे में. इसमें थोड़े कम पॉइंट्स हैं बट नंबर्स भी उतने ही हैं. ओके द एरिया ऑफ इंडिया. अब एरिया की बात करें, एरिया कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स और इंडिया का 3.28 किलोमीटर्स है. बट पूरे वर्ल्ड में इतना कितना हिस्सा है, पूरे जोग्राफिकल एरिया में ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कितना हिस्सा है? जस्ट 2.4% ऑफ जोग्राफिकल एरिया. मतलब इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बट जोग्राफिकल एरिया सबसे कम. अब बात करें लैंड बाउंड्री की, वो 15,200 किलोमीटर्स है. अगर हम आइलैंड्स को कंक्लूड कर लें तो वो 7,516.6 किलोमीटर्स है. सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर. बहुत छोटा पॉइंट था, बस याद करने की चीज़ है, इसमें लाइक ज़्यादा समझने वाला कुछ नहीं है. ना कमिंग ऑन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. ओके स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी इंडिया का, सपोज ये पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में अलग अलग लॉन्गिट्यूड है. हर लॉन्गिट्यूड के बीच में एक एक टाइम गैप है. अलग अलग पूरे जगह पर मतलब छोटे मतलब कॉन्टिनेंट पर अलग अलग टाइम है. इंडिया भी एक कॉन्टिनेंट में आता है, एक कंट्री है, एक इंडिया है. इंडिया के में भी मेरिडियंस पास करते हैं. अब इंडिया में से दो मेरिडियंस पास करते हैं. अब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है. मतलब अगर इंडिया ने अपना मेरिडियन नहीं चुना होता तो फिर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का टाइम लैप होता. इसी वजह से इस टाइम लैप की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंडिया ने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन अपने लिए चूज़ करा जो 82°30 ईस्ट से पास करती है मिर्ज़ापुर से, जो उत्तर प्रदेश में है. ओके कौन से डिग्री से पास करती है वो? 82°30 ईस्ट से. कहाँ से? मिर्ज़ापुर, जो उत्तर प्रदेश में है. जो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करता है डे एंड नाइट की ड्यूरेशन को. ये लैटिट्यूड है. ओके लेटा हुआ लाइन को लैटिट्यूड, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है. लैटिट्यूड एक इक्वेटर भी है. अगर हम इक्वेटर से दूर जाएंगे वैसे ही हमारा जो डे एंड नाइट में डिफरेंस पता चलेगा, बट जितना ही नियर आएंगे डे एंड नाइट में उतना ही डिफरेंस हमें नहीं पता चलेगा. ठीक है, इसलिए जब आप लैटिट्यूड में देखो तो जो गुजरात यहाँ पर है और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है और ये ऊपर भी जा रहे हैं. सो ये डे एंड नाइट की ड्यूरेशन को भी करते हैं और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे डे एंड नाइट में आपको डिफरेंस भी पता चलेगा और ड्यूरेशन भी चेंज होते हुए दिखेगी. Now coming on the next slide, this is do you know the southernmost part of the Union Territories, Indira Point, this is
दिस इज एवरीबडी इज नोन टू कि इंदिरा पॉइंट जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था, सदर्न मोस्ट यूनियन पॉइंट था, वो 2004 में सबमर्ज हो गया सी के अंदर। क्यों? सुनामी के कारण। सुनामी में टी साइलेंट होता है ना। कमिंग ऑन द स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ इंडिया। अब इंडिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्यों कहते हैं, मतलब इतनी अच्छी लोकेशन क्यों है इंडिया की? सो लेट्स अस अंडरस्टैंड अबाउट इट। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। द लैंड बिटवीन द लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। मतलब ये ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में है। ओके। India is a southward extension of the ancient continent, Asian continent, ancient आगे Asian continent। अब मतलब ये एशिया है, सपोज दिस इज एशिया, यहाँ पर रशिया है, यहाँ पर कोई और कंट्री, यहाँ पर कोई और कंट्री, यहाँ पर कोई और कंट्री, और इंडिया का है, इंडिया यहाँ पर है, सर्दर्न एरिया में है इंडिया। ओके, नाउ coming on the third point, the trans-Indian ocean routes which connect the countries of European to the west and the countries of the Asia provide a strategic central location of India. Okay, इसमें थोड़े से spelling mistakes है, don't mind it. Now, looking here, the trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of the east Asia. अब जो ये बीच में है, यहाँ से ईस्ट का एरिया, और वेट लेट मी शो यू हेयर। ओके, यहाँ से ईस्ट एंड वेस्ट एशिया दोनों कनेक्ट होते हैं क्योंकि इंडिया का मोस्ट ऑफ द हिस्सा जो है वो वाटर में है। अगर यहाँ से ईस्ट से भी कुछ आ रहा है तो यहाँ से ही होकर जाएगा, अगर वेस्ट से आ रहा है तो यहीं से होकर जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। द Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from the western coast. Okay, हमें पता है यहाँ पर ऐसे दो माउंटेन्स हैं, वी ऑल नो दैट यहाँ पर दो माउंटेन्स है, कि ईस्टर्न कोस्ट है, एक वेस्टर्न कोस्ट है। सॉरी माउंटेन्स नहीं, कोस्ट्स। ये हमारे कोस्ट होते हैं ना, जो वाटर लाइन्स के पास होते हैं ना, कोस्ट कहते हैं। तो एक ईस्टर्न कोस्ट, एक वेस्टर्न कोस्ट। जो ईस्टर्न कोस्ट है वो किस चीज़ के लिए यूज़फुल है? वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ, क्योंकि यूरोप भी इस साइड है, अफ्रीका भी इस साइड है, और वेस्ट एशिया भी इस साइड है। तो जो भी शिप जाएगी वो यहीं से होकर जाएगी, तो इसके साथ जो हमारे रिलेशनशिप्स है वो भी अच्छे हो रहे हैं, मतलब क्लोज कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं। और जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ से हमारे ईस्ट एशिया, मतलब बाकी का जो ईस्टर्न एशिया है वहाँ से जा रहा है, क्योंकि ऑल द वे इंडियन ओशन से ही होकर उन्हें जाना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं इंडियन ओशन के बारे में। अब बात करते हैं इंडियन ओशन के बारे में। अब इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन क्यों पड़ा, इंडिया के ऊपर क्यों पड़ा? क्योंकि जब आप देखो सबसे ज़्यादा कोस्ट किसका है इस ओशन में? इंडिया का। इसके पास कुछ कंट्रीज़ भी है जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, उसका ज़्यादा नहीं है इस ओशन में। सो दिस इज़ द रीज़न वाई इस ओशन का नाम इंडियन ओशन पड़ा। ओके, थोड़ा सा ये सेंस बनाता है थोड़ा सा। अब बात करते हैं एक और डू यू नो की, क्योंकि डू यू नो से भी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, सो ये इम्पोर्टेंट है करने का। अब आते हैं दूसरे डू यू नो पे, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट है। हम सभी को पता है स्वेज कैनल जो 1869 में, ये याद रखना, 1869 में स्वेज कैनल की ओपनिंग हुई थी, जिससे इंडिया को क्या बेनिफिट मिला? इंडिया को ये बेनिफिट मिला, जो यूरोप से इंडिया तक का जो रास्ता था, जो डिस्टेंस था,
वो 7,000 किलोमीटर्स कम हो गया। 1869 से पहले वो 7,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा थे, बट जब से सुएज कैनाल ओपन हुआ तब से 7,000 किलोमीटर्स इंडिया के कम हो गए। अब हम बात ही कर रहे हैं ये सी रूट्स वगैरह वगैरह के, तो अब हम जानते हैं ये कंट्रीब्यूशन सी रूट का है क्या इंडिया पे। सबसे पहला ये जो सी रूट्स है, इन्होंने आइडियाज़ एक्सचेंज करने में मदद करे। पोर्तुगीज़ आए, उन्होंने हमें कुछ दिया, यूरोपियंस आए, उन्होंने हमें कुछ दिया, तो बहुत सारे कंट्रीज से बहुत सारे लोग आए, इससे हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज हुए। लैंड के थ्रू आ नहीं सकते क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल चल रहे थे, तो वो सी रूट्स के थ्रू आए। सी रूट्स के थ्रू आए, आइडियाज़ एक्सचेंज हुआ, कमोडिटीज़ एक्सचेंज हुई। सो दिस वॉज द फर्स्ट यूज ऑफ दिस। ओके, नाउ अब इंडिया, वहाँ से वो आए, हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज हुए। आइडियाज़ में क्या क्या एक्सचेंज हुआ? इंडियाज़ का जो आयुर्वेदा था, रामायण था, उपनिषद था, न्यूमेरल्स थे, डेसिमल सिस्टम थे। अगर सी रूट्स नहीं होते तो शायद उन्हें बहुत समय लगता, बट नो, बट उन्हें बहुत ओके। अब ट्रेड्स, नथिंग इज़ विदाउट ट्रेड। सो स्पाइसेस, मसलन्स, ये सब चीज़ें भी ट्रेड हुई, मतलब आई और गई, आई और गई, मतलब थ्रू इट वॉज कैरिड टू द अनदर कंट्री, शिप्ड फ्रॉम हेयर एंड देयर। दिस वॉज द हेल्प ऑफ द सी रूट्स। अब ग्रीक्स के इन्फ्लुएंस स्कल्पचर्स हम देख सकते हैं बहुत सारे, लाइक हमें like in the 6th and 7th we are taught to that there are some Greek architectural sculpture influences in India, and we can see in different parts of our country. Now come in on the next, do you know which is the two types of states which existed in India before our independence? Okay, now here there were two types of states. One was the province and one was the princely states. Princely states से पता चल रहा है उसमें prince word आ रहा है, prince, and provinces we all know which are called states. Okay, so इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले दो तरीके के स्टेट्स होते थे, एक तो प्रोविंस होता था और एक प्रिंसली स्टेट्स होते थे। प्रोविंस यानी ऐसे स्टेट्स जो ब्रिटिश ऑफिसर्स रूल करते थे, जो किससे अपॉइंट होते थे, कौन उन्हें अपॉइंट करते थे इन प्रोविंसेस को रूल करने के लिए? वाइस रॉय। अब प्रिंसली स्टेट्स की बात करें, ये लोकल रूलर्स थे जो अपने छोटे छोटे एरियाज़ को रूल करते थे, मतलब जहाँ पे राजा महाराजा वहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स, जहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल वो प्रोविंसेस। ओके, now coming on the last topic of this chapter, which is neighbors of India. अब neighbors of India, we have a lot of neighbors, so let's us know about them. सबसे पहला, इंडिया अपनी बाउंड्रीज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करता है, जो यहाँ पर है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट एरिया में, वेस्ट साइड है, नॉर्थ वेस्ट एरिया पे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ हमारा इंडिया शेयर करता है। अब उसके बाद चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ वो ईस्ट साइड में करता है। ये भूटान, नेपाल और चाइना वो नॉर्थ साइड में आए, और ये जो म्यांमार और बांग्लादेश है वो आ गए ईस्ट साइड में। अब नीचे जाते हैं साउथ की साइड में सी। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, अब ये सी साइड पर हमारे नेबर्स कैसे हो सकते हैं? नेबर्स मतलब जो अपनी बाउंड्रीज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, बट सी साइड पर हम देखें तो हमारे पास दो दिखते हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये हमारे साथ शेयर करते हैं, अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते, बट दे आर आवर नेबर्स इन द ओशन। ओके, श्रीलंका की बात करें, ये हम एक नैरो चैनल जिसे स्ट्रेट कहते हैं, जो कनेक्ट करता है हमें श्रीलंका और इंडिया के साथ। दिस इज श्रीलंका एंड दिस इज इंडिया। ओके, एक स्ट्रेट कनेक्ट करती है जिसे कहते हैं पाक स्ट्रेट, PALKSTRAIT, पाक स्ट्रेट।
अब जब मालदीव्स की बात करें, मालदीव्स यहाँ पर है जो है लक्षद्वीप, सपोज इज द लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के साउथ में हमें मालदीव्स दिखेगा, और एक स्ट्रेट से मतलब वेन एवर यू सी द मैप हेयर इज द इंडिया, whenever you will see a map, you will see the India here and you will see Sri Lanka here, which is connected with something this kind of line which is called the strait. Now the strait is called the Park Strait and the Gulf of Mannar. Okay, and here's the chapter of, and here the chapter of India size and location is finished. And the questions that I was about to tell you, so let's just get started with this second size of India and the location of India. Like, describe the size and location of India. This is the first question. Describe size and location of India. Okay, this is the first question that you can do, that may come in your exam. Second question, it may be given in the find out and in the back exercise, like why 82°30 east has been selected as the standard meridian of India. Why? Because there were time lag from Gujarat of 2 hours from Gujarat to Arunachal Pradesh, so we choose 82°30 east, a standard meridian passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, and the latitudinal extent influences are great in duration of day and night as one goes from south to west, south to east. Now coming on this about the Indra Point, strategic location of India, like if you go on the page number 6 and find the question number 4, the central location of India at the head of the Indian Ocean is considered a great significance. Why? You can practice that question and the answer is this. Now about the Suez Canal, when the Suez Canal had opened and what it had helped India to do, how it helped India. Now contribution of sea route. What were the effects of the sea routes of India in the ancient time? क्योंकि ये सी रूट्स हमारे एंशियंट एंड मेडिवल टाइम से हेल्प करते हुए आ रहे हैं मॉडर्न टाइम तक. पोर्तुगीज़ आए, ग्रीक्स आए, उन्होंने हमें बहुत सारे आइडियाज़ और कॉमोडिटीज़ एक्सचेंज करी. हमने उनसे कुछ लिया, उन्होंने हमसे कुछ लिया. ओके. Now coming on, describe the two types of states existed in India before 1947. Because after independence, there were only states which were ruled by different ministers and everything. But before 1947, there were two types of states. One was the princely states ruled by the local rulers, and the provinces ruled by the British, who were appointed by the viceroy. Describe the neighbors of India. This question may come in many different forms. Okay. Now here we have reached the end of our slide, and here our class truly ends. Bye. See you in the next video. In next boring class. I may think it must be of English. Maybe. Bye. See you later. Take care. Stay safe. Stay healthy.